Good morning, students. Welcome back to your computer class. I hope you all are enjoying learning through virtual classes. First of all, clap for yourself that you all are doing very well. Before starting today's class, kids, let's do an activity. Okay, answer me some questions. What is the title of your computer book? Name the state you belong to. How many subjects do you learn in school? Think the answers of these questions. Okay, now I will tell you the answers. The title of your computer book is IT Vision. The state you belong to is Haryana. And you learn 5 subjects in the school. These are English, Hindi, Maths, EVS and Computer. Beta, if your all answers are correct, it means you have a very good memory. Memory? Did you listen a new word here? Memory? What is this memory? It is the information that you have learnt and can recall it when required. आपने बेटा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए. आपने पहले क्या किया था? उन क्वेश्चंस को लर्न किया था और लर्न करने के बाद आपने जब उनकी आपको ज़रूरत पड़ी आपने रिकॉल किया उनको और उनको आंसर किया. तो मेमोरी क्या हुआ? एक ऐसा स्पेस हमारे ब्रेन में जहाँ पर हम लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसको रिकॉल कर सकते हैं. तो बेटा, डू यू थिंक दैट कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ मेमोरी? Yes, computer also has a memory where computer can store its information and data. Okay, let's take some examples to understand the concept of memory. Here you can see a picture of bag. This bag is used to store our books when we go to school. And we use lunch box to keep our lunch. And this geometry box is used to store our pencil, eraser, sharpener. So beta, these are the storage units for different things. In the same way, at our home, our mama store our clothes in almirah. आपकी मम्मा आपके क्लोथ्स को, आपके टॉयज़ को अलमीरा में स्टोर करके रखती हैं ना, ताकि वो गुम ना हो, गंदे ना हो. ठीक है? तो बेटा, टू स्टोर डिफरेंट थिंग्स वी नीड डिफरेंट type of storage material. In the same way, the computer also required some storage unit to store its data. As you can see here, the memory devices of the computer. Here you can see the RAM, ROM, CD, hard disk, floppy, pen drive, hard disk. These all are the memory devices of the computer. ये सभी सब के सभी क्या हैं बेटा? कंप्यूटर के मेमोरी डिवाइसेस हैं. इन्हें कंप्यूटर यूज़ करता है अपना डेटा स्टोर करने के लिए. ओके, नाउ you will be able to understand that today we will learn about the computer memory. It's the chapter 2 of our computer book. Now, before starting the chapter, let's learn some new words. The first one is memory, memory. primary, primary. secondary, secondary. random, random.
आर एन ए एल internal, E X T E R N A L external. Students, repeat these words once again after me. Memory, primary, secondary, random, internal, external. Students, you have to write these new words of lesson 2 in your computer notebook. Okay. Types of computer memory. Now, first of all, let's understand what is memory. Memory is the storage capacity of a computer. Memory क्या होती है? एक कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी, कि हम लोग कंप्यूटर में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं. कंप्यूटर मेमोरी इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्पररी और परमानेंटली. जो कंप्यूटर मेमोरी है बेटा, वो दोनों तरह से टेम्पररी मीन्स फॉर स्मॉल टाइम एंड परमानेंटली मीन्स फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए. ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी में हम लोग दोनों तरह से अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए भी और हमेशा के लिए भी. कंप्यूटर मेमोरी इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. जो बेटा कंप्यूटर की मेमोरी है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द नंबर 1 इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी. ओके, लेट्स लर्न अबाउट द प्राइमरी मेमोरी. इट इज़ द मेन मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या है? हमारी मेन मेमोरी है कंप्यूटर की. इट इज़ वेयर डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड व्हाइल कंप्यूटर फंक्शंस. यहाँ पर डाटा और इन्फॉर्मेशन बेटा कब स्टोर होती है? जब हमारा कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है. सपोज वी आर टाइपिंग अ ब्यूटिफुल पोएम इन आवर कंप्यूटर, द MS वर्ड सॉफ्टवेयर इज़ ओपन, तो वहाँ पर हमारी प्राइमरी मेमोरी एक्टिवेट होती है. हाउएवर इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. पर लेकिन जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है बेटा, उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती डाटा को स्टोर करने की, लिमिटेड होती है, कम डाटा स्टोर कर सकती है वो. प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑल्सो नॉन एज इंटरनल मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी को बेटा हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर की. वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी? बिकॉज दिस मेमोरी इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट. That's why it is called the internal memory of the computer. Okay, now the types of primary memory. अब primary memory की क्या क्या types हैं? Random access memory and the read only memory. The 2 types of primary memory are random access memory and read only memory. Now we will learn about the random access memory. In short, it is known as RAM. RAM stores the data, instructions and information temporarily. RAM के अंदर भी जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं बेटा, वो टेम्परेरली स्टोर होती है. टेम्परेरली मीन्स कि थोड़े टाइम के लिए स्टोर होती हैं. When you turn off the computer, the information and data stored in this memory is lost. जैसे ही आप लोग अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन आपने प्राइमरी मेमोरी रैम में स्टोर होती हैं, वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती हैं. समझ आया बेटा? मैम, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपके कंप्यूटर को ऑफ होती है, वैसे ही जो भी इंस्ट्रक्शंस या डाटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है. When a computer starts, the operating system begins loading to RAM. हम लोग जैसे ही अपने रैम की वर्किंग क्या होती है बेटा, आपको वो बता रही हूँ मैं. जैसे ही हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है ना बेटा, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था. इट इज़ द मेन कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो जैसे ही हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी हमारी प्राइमरी मेमोरी में ऑटोमेटिकली स्टोर होती है. ठीक है,
Any software that runs on a computer also gets loaded into RAM. और जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर में रन कर रहे हैं, अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले भी एग्जांपल दिया था, सपोज़ हमने MS वर्ड ओपन किया है या पावर पॉइंट ओपन किया है या पेंट ओपन किया है, वो सभी के सभी सॉफ्टवेयर एट प्रेजेंट रैम में भी लोडेड होते हैं. ठीक है बेटा. इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. फॉर CPU assesses the memory in a random manner. इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? रैंडम का मतलब क्या है? ऐसी थिंग्स जिनको हम लोग रैंडमली यूज़ करते हैं, जब जिनकी हमें जिस समय हमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम उनको यूज़ कर लेते हैं, वैसे नहीं करते. इसी तरह से CPU जो है रैम को भी रैंडमली यूज़ करता है. जब CPU को रैम की रिक्वायरमेंट होती है तब वो उसको यूज़ करता है, अदरवाइज़ उसको यूज़ वो नहीं करता. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. It is also called read and write memory because information can be read from it and data can also be written or stored on it. इसको हम लोग बेटा रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं. रीड मीन्स हम इसमें से डाटा को रीड भी कर सकते हैं. राइट मीन्स डाटा इसके ऊपर राइट भी हो सकता है. समझ आया? तो जब हम लोग इंफॉर्मेशन इसमें से रीड करना चाहें तो कंप्यूटर सिस्टम कैन रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट. If computer system wants to write some data on it, the computer system can write the data on it. RAM is volatile memory, which means it loses its data once the power is turned off. RAM volatile memory होती है बेटा. volatile का मतलब क्या होता है? temporary, कि कुछ समय के लिए ही जो वर्क करती है. तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है. जैसे ही कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ऑफ होती है, जितना भी डाटा रैम पर होता है वो सारा का सारा डाटा इरेज हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी फ्रॉम विच you can only read the information stored in it but cannot write on it. आपको इसके नेम से ही क्लियर होगा बेटा. रीड ओनली यानी कि वी कैन रीड फ्रॉम इट. हम इसमें से ओनली डाटा को रीड कर सकते हैं, तो इसमें डाटा को राइट नहीं कर सकते. दैट मीन्स द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड. अब हम उसमें राइट तो कर नहीं सकते, तो रोम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होती हैं वो उनको हम चेंज नहीं कर सकते. द इंफॉर्मेशन इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इन इट. परमानेंटली रैम में टेम्परेली स्टोर होती थी ना बेटा इंस्ट्रक्शन, बट रोम में परमानेंटली स्टोर होती है. डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन रोम आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ. इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई का रोम पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता. आप चाहे आपके कंप्यूटर को पावर सप्लाई ऑफ कर दी जाए तब भी जो डाटा रोम में है वो परमानेंटली सेव रहता है, वो इरेज नहीं होता. देयरफॉर इट इज़ नॉन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इसीलिए रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है. तो बेटा नाउ यू आर एबल टू डिफरेंस बिटवीन द टू मेमोरीज रैम एंड रोम. रैम इज volatile in nature. ROM is non-volatile in nature. RAM is temporary memory. ROM is permanent memory. In RAM, data gets erased when power supply is off. But in ROM, data does not get erased when power supply is off. Okay. Now, next we will learn the types of ROM. Here are 3 types of ROM. PROM, EPROM and EEPROM. PROM. The content of the memory can be modified by a programmer only once. The full form of PROM is beta programmable read only memory. Programmable means the programmer. जो हम प्रोग्रामर कौन होते हैं बेटा? जो सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं. दीज आर द प्रोग्रामर्स. दीज पर्सन्स आर द प्रोग्रामर्स. तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो PROM में ओनली 1 टाइम डाटा को सेव करते हैं. उसके बाद इसके अंदर दोबारा डाटा को राइट नहीं किया जा सकता. ओनली
रीड किया जा सकता है. नेक्स्ट इज EEPROM. दिस इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. डेटा कैन बी इरेज्ड एंड rewritten on it. The full form of EEPROM is बेटा erasable programmable read only memory. इसमें हम लोग बेटा डाटा को इरेज भी कर सकते हैं और राइट भी अगेन कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज EEPROM, electrically erasable programmable read only memory, where data is erased from this memory with the help of electric charge. इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करके हम लोग इसमें से डाटा को इरेज कर सकते हैं. नॉट हम लोग, द प्रोग्रामर्स डाटा को इरेज कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं. ओके बेटा, द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी आई होप इज़ नाउ क्लियर टू यू. यू हैव टू solve this worksheet in your rough notebooks. The question 1 is multiple choice question. Which of the following is not a type of ROM? You have to select the correct answer. PROM, EEROM and EPROM. It is volatile memory. RAM, ROM or both of these. इनमें से volatile memory कौन सी है बेटा? RAM है, रोम है, कौन सी है? नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द मिसिंग लेटर्स. बेटा आपको यहाँ पर मिसिंग लेटर्स को फिल करना है. जो हमने अभी न्यू वर्ड्स के बारे में लर्न किया था बेटा, उन्हीं न्यू वर्ड्स को आपको कंसिडर करते हुए इन मिसिंग लेटर्स को फिल करना है. ओके बेटा, स्टे एट होम एंड स्टे ब्लेस्ड.